Dear students, we all have learned that Mendel's work was far beyond excellence. But his work was not accepted by the contemporaries because of a number of reasons. Like he used mathematics in finding out the inheritance patterns. He proposed that there are stable and discrete units that he called as factors, and these factors are responsible for controlling the characters. But people at that time were believing in blending theory of inheritance, and according to them, the characters from the parents they get blended, and these blended characters they pass to the progenies. And this idea of this stable discrete unit was also not verified. He was not having any physical proof for these factors. There was no proof that where these factors are located in organisms, what is their chemical nature, how they look like, where they are present. Nothing was with Mendel. That's why this is because his work was totally neglected or unrecognized. Although his work was published in 1865, but till 1900 it was totally under ignorance. But in 1900, three legendary scientists, De Vries, Correns and von Teschelmack, these three scientists rediscovered Mendel's work independently. They worked in the same way, same type of experimental steps were followed by these scientists independently, and their legendary work helped them to put a shine or put a light or to highlight the Mendel's work. And by this time, microscopic studies were also performed by the different scientists in other part of the world, and these microscopic studies give an idea that inside a cell there is a nucleus, and in nucleus there are some thread-like structures which can be stained, and these stained structures are known as chromosomes. तो जैसे सेलुलर स्टडीज की जाने लगी, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की जाने लगी, तो कुछ नए स्ट्रक्चर्स के बारे में साइंटिस्ट को आइडिया हुआ, जैसे क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स दे शो मूवमेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. आप सभी ने 11th क्लास में माइटोसिस एंड मियोसिस दो सेल डिवीजन्स को पढ़ा है, और हमें ये आइडिया है कि क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, एंड दिस क्रोमोसोम दे शो मूवमेंट्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन्स. माइटोसिस is known as the equational division and meiosis is known as the reductional division. लेकिन दोनों ही टाइप के सेल डिवीजन्स में क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है. So on the basis of these chromosomal movement studies, two scientists, one was Walter Sutter and other was Theodore Boveri. These two scientists they were working on the chromosomes independently. They were studying the behavior of the chromosomes independently, and after their studies they assembled their work and proposed a theory known as chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance is actually based on the parallelism drawn between the factors proposed by Mendel and the chromosomes present in the cell. सटन एंड बोवरीज की जो स्टडीज थी वो क्रोमोसोमल मूवमेंट्स के ऊपर थी, और उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के टाइम मूवमेंट शो करते हैं, उस मूवमेंट में बहुत सा कनेक्शन, यानी उनके जो बिहेवियर पैटर्न है वो बहुत हद तक फैक्टर्स की बिहेवियर से मिलता है. फैक्टर वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय मेंडल, जिसे हम आज जीन के नाम से जानते हैं. तो सटन एंड बोवरी ने जो मेंडल के लॉज थे उनको हाईलाइट करने के लिए या उनके लिए प्रूफ देने के लिए कि ये एक्चुअल में
चलता है, फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, फैक्टर्स सेग्रीगेट करते हैं, फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं, वो जो मेंडल के जो लॉज थे, जिनमें से वन वाज लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, वन वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ factors and law of independent assortment. These three laws were given a light when the Sutton and Boveri studied the chromosomal movements in the cell. So in this video we will study what was this theory of chromosomal inheritance, chromosomal theory of inheritance given by Sutton and Boveri, और इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे जो क्रोमोसोम्स और फैक्टर्स के बीच में पैरेललिज्म ड्रॉ करते हैं। उससे पहले एक बार आप इस बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेल्स दिखाई है और सेल्स में क्रोमोसोम्स की मूवमेंट दिखाई है। सेल डिवीजन की ये कुछ स्टेप्स दिखाई गई है, हाईलाइट की गई है। एक्चुअली आई हैव शोन हियर द एनाफेज फर्स्ट स्टेप, और एनाफेज फर्स्ट के बाद यहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेप दिखाई गई है ये टेलोफेज है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू सटन एंड बोवेरी द फर्स्ट पॉइंट इज दैट देयर आर क्रोमोसोम्स व्हिच एग्जिस्ट इन पेयर्स। उनका पर्सपेक्टिव क्या था कि सेल के अंदर एक क्रोमोसोम होते हैं एंड द क्रोमोसोम्स दे अकर इन पेयर। जैसे यहाँ पर एक सेल में यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, एक ये पेयर है और दूसरा ये पेयर है। टोटल 4 क्रोमोसोम्स है बट 2 pairs are present, and this pair form is the homologous chromosomes. ये जो क्रोमोसोम दिखाए गए हैं इनमें से एक मैटरनल दिखाया गया है, एक पैटर्नल दिखाया गया है। आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम्स का एक सेट मदर से मिलता है और एक सेट फादर से मिलता है। तो यहाँ पे जिसको मैंने यहाँ से फिलअप नहीं किया है, जैसे ये रेड और ब्लैक, इसको आप माने कि ये पैटर्नल क्रोमोसोम है ना, फादर से मिले हुए क्रोमोसोम्स। और इसका बिल्कुल दूसरे वाला जो सेट का क्रोमोसोम है यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फिल कर दिया है, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में इजी रहे कि ये मैटरनल क्रोमोसोम है। सो दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पेयर पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इसमें एक मैटरनल और एक पैटर्नल है। दूसरे पेयर में भी आप देखें दिस इज maternal and paternal chromosomes. So this pair of chromosome is known as homologous pair or homologous chromosomes. But what is a homologous chromosome? Homologous chromosomes are those chromosomes which are similar in size, shape and type of genes. तो यहाँ पर मैंने 2 पेयर दिखाए हैं, आप देख रहे हैं कि ये 2 क्रोमोसोम से ये एक पेयर है। ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं, साइज, शेप एंड द टाइप ऑफ जीन्स। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने हाइट के लिए जीन दिखाई है, तो इस क्रोमोसोम पे दूसरे क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पर आपको हाइट की जीन मिलेगी। जितने भी जीन्स इस क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली दूसरे क्रोमोसोम पे अगर है तो वो उसका होमोलोग माना जाता है। ऐसे ही ये वाला पेयर, इस पे आप कोई और जीन दिखा दीजिए, जैसे आप सिंबल यूज कर ले कैपिटल R एंड स्मॉल r, तो देखिए इस पोजीशन पे ये जीन्स अलग है, यानी कि ये दोनों क्रोमोसोम इन दोनों क्रोमोसोम से बिल्कुल अलग है। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, और ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है इनमें से एक मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम है और दूसरा फादर से। वन इज मैटरनल एंड अदर इज पैटर्नल क्रोमोसोम। So the first postulate was given by the Sutton and Boveri was that chromosomes occur in pairs. अब बिल्कुल सेम लाइन अगर हम फैक्टर्स के लिए बोले तो मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल also said that there are factors and factors exist in pairs. Okay? यहाँ पे आप फैक्टर्स को दिखा भी सकते हैं, जैसे ये अगर होमोजाइगस केस दिखाया है, यहाँ पे हमने हेटेरोजाइगस केस दिखाया है, या ये होमोजाइगस केस, ये दोनों होमोजाइगस है। एक में डोमिनेंट एलील दिखाई गई है, एक में रिसेसिव एलील दिखाई गई है। ठीक है, लेकिन तीनों ही केसेस कैसे हैं जिसमें हमने फैक्टर्स को पेयर्स में दिखाया गया है। द नेक्स्ट postulate given by Sutton and Boveri was
है तब ये अपने आप को सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्टेप्स दिखाई गई हैं आप देख रहे हैं कि ये मियोसिस प्रोसेस दिखाई गई है। सबसे पहले मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अपने आप को सेंटर प्लेट पर अलाइन कर लेते हैं, जैसे इस पेयर ने अपने आप को यहाँ पर सेंटर में अलाइन किया हुआ है। जिसको मैंने फिलअप नहीं किया है इसको आप पैटर्नल मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पे लेबल भी कर देते हैं, दिस इज द पैटर्नल क्रोमोसोम, फादर से मिले हुए क्रोमोसोम, और ये मदर से मिले हुए क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अलाइनमेंट कैसे की गई है। अलाइनमेंट, पैटर्नल क्रोमोसोम्स इस पोल की तरफ है और इनका फेस, मैटरनल क्रोमोसोम्स का फेस दूसरे पोल की तरफ है। ओके, सो दे हैव positioned them at the center of the cell. This is the metaphase plate actually. तो एक पॉसिबिलिटी आप देखिए यहाँ पे ऐसे ही है, दूसरी पॉसिबिलिटी आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने एक पैटर्नल क्रोमोसोम को यहाँ दिखाया और इसमें इसके साथ जो ब्लैक क्रोमोसोम दिखाया गया, दिस इज द मैटरनल क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम्स का पेयर जरूर अलाइंड है, लेकिन डिफरेंस क्या दिखाया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पोजीशन कुछ ऐसी हो और यह पोजीशन कुछ इस तरह की हो। अब सेकंड पोस्टुलेट जो था कि क्रोमोसोम जो पेयर्स में है दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। तो आप देखिए मेटाफेज में जब ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, उसके बाद एनाफेज स्टेज में इनको पुल अप किया जाता है। ये स्पिंडल फाइबर्स दिखाए गए हैं, स्पिंडल फाइबर दिखाने से स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये अपने आप को पुल अप करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दे पुल द क्रोमोसोम्स फ्रॉम द होमोलोगस और पेयर, जैसे ये पेयर है इसमें से इन क्रोमोसोम्स को ये अपनी तरफ पुल करते हैं, तो इस पेयर में से एक क्रोमोसोम इस पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम जो है इस पेयर में से वो इस पोल की तरफ आ जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये पैटर्नल क्रोमोसोम ऊपर चला गया है और इस ब्लैक का जो ये फ्रिल्ड पार्ट है यानी दूसरा मैटरनल क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पोल की तरफ आ गया। आप इसको भी ध्यान से देखिए, जब इन दोनों पेयर में से क्रोमोसोम्स अलग होंगे, सेग्रीगेट होंगे, तो यहाँ पर पैटर्नल क्रोमोसोम ऊपर और मैटरनल क्रोमोसोम दूसरी तरफ चला गया। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है आपको कि द क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटिंग। जो पेयर फॉर्म थी क्रोमोसोम्स की वो यहाँ पर पेयर नहीं है, दे हैव सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस तरह से अगर अलाइनमेंट थी तो भी यहाँ पर सेग्रीगेशन हो रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी में भी आप देखिए कि सेग्रीगेशन हुआ है। क्या ये पॉइंट क्रोमोसोम के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से मैच करता है? उन्होंने भी तो ऐसा ही कहा था कि फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं एंड द फैक्टर्स दे गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अगर ये एक पेरेंट है और इस पेरेंट में हमने फैक्टर्स को पेयर्स में दिखाया है, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये दोनों फैक्टर्स या एलील्स अलग अलग हो जाती हैं। The factors they get segregated। या अगर ये केस लेते हैं तो इसमें भी कुछ हमें ऐसे दिखाना है, कैपिटल T and small t। This is exactly the same behavior as Mendel was saying। He was saying that factors exist in pairs। Factors they segregate during the gamete formation and chromosomes are also showing the same behavior under the microscope। They exist in pairs and they segregate during the gamete formation। बिल्कुल एक जैसे पॉइंट्स। एंड थर्ड पॉइंट जो मेंडल ने कहा था कि जब डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे तो वहां उन्होंने कहा था कि एक पेयर, जैसे यहाँ पर हम डाइहाइब्रिड को रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, दिस इज द जीनोटाइप एंड जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर द R, कैपिटल R कैन
make a combination with capital Y and R can also make combination with small y. ये दो कैरेक्टर्स की हमने एलिमेंट्स दिखाई है, दो कैरेक्टर जिसमें एक तो शेप है और दूसरा कलर कैरेक्टर है। तो शेप का जो फैक्टर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं कैपिटल R एंड स्मॉल r, they can make combination, they are free, they can make combination with either capital Y or the small y. जैसे gametes जब बनते हैं तो this capital R can go with or can make combination with capital Y or with small y, and same is with the small r. Small r can make combination with capital Y or the small y. तो हमें चार टाइप के gametes मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दो जो ये एलिमेंट्स दिखाई है ये इंडिपेंडेंट है, ये दे आर इंडिपेंडेंटली मेकिंग कॉम्बिनेशन और assorting themselves. This was the law of independent assortment. He said that in a hybrid, जहाँ पे एक ऐसे हाइब्रिड जिसमें दो कैरेक्टर्स आप एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो वो दोनों कैरेक्टर्स के जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे ये कैरेक्टर है शेप वाला, ये कैरेक्टर है कलर वाला, तो कैरेक्टर के लिए जो शेप वाले कैरेक्टर के लिए जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं दूसरे कैरेक्टर की एलील्स पर, वो उनके साथ बाउंड नहीं होती है कि अगर कैपिटल R है तो ये सिर्फ कैपिटल Y के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाएगी, ऐसा नहीं है। The R can make combination with small y also. They are independently behaving, independently assorting. Recombination वो कैसे भी बना सकती है। ऐसा ही सटन एंड बॉबिन ने भी कहा, उन्होंने थर्ड पॉइंट जो अपने थ्योरी में बोला वो ये, जैसे यहाँ पर हमने दो पेयर्स दिखाए हैं, according to Sutton and Bowlby, independent pair assort independently of other pair. जैसे यहाँ पर आपको ये जो क्रोमोसोम दिखाया था, जैसे आपको बोला था कि ये इसको आप मानिए कि पैटर्नल क्रोमोसोम है, फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, और बिल्कुल इसका होमोलॉग है यहाँ पर मदर से मिला हुआ, ठीक है। तो आप देखिए अगर इस सेल में जो इनकी अलाइनमेंट है इसका कंपैरिजन आप यहाँ से करें तो आप क्या देखते हैं कि वन क्रोमोसोम, ये वाला जो क्रोमोसोम का पेयर है, इसमें इसकी अलाइनमेंट कैसे भी हो सकती है। हो सकता है पैटर्नल क्रोमोसोम इस पोल की तरफ हो, या हो सकता है पैटर्नल क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ हो। ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे कैन अलाइन देमसेल्व्स फ्रीली, कैसे भी वो अपने आप को इस मेटाफेज प्लेट पर अलाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस पेयर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे ये वाला फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मैंने पैटर्नल क्रोमोसोम दिखाया है, तो यहाँ इस केस में फर्स्ट पॉसिबिलिटी में इधर भी मैंने पैटर्नल क्रोमोसोम को दिखाया है, लेकिन आप यहाँ देखिए अगर इधर पैटर्नल है तो यहाँ पर मैटर्नल है। बट आई एम गोइंग टू से दैट these two pairs of chromosomes are independent of each other. One independent pair, ना तो ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि they will go with a particular type of chromosome, ये इंडिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंटली दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ देखिए, जैसे ही ये सेग्रीगेट होते हैं दूसरे साइड, दोनों अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, तो फाइनली आप इन सेल्स को देखिए, क्रोमोसोम्स यही वाले थे, लेकिन इस सेल में देखिए क्रोमोसोम्स क्या मिले हैं, ये आपको दोनों क्रोमोसोम्स पैटर्नल दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ये अलग टाइप का क्रोमोसोम है, ये दूसरे, लेकिन है दोनों पैटर्नल। यहाँ पर दोनों मैटर्नल हैं, यहाँ पर एक मैटर्नल और एक पैटर्नल, यहाँ पर भी एक मैटर्नल और एक पैटर्नल। बहुत इजीली अगर आपको लैंग्वेज में बताया जाए तो ये है कि जो ये ब्लैक वाला जो पेयर है,
pair is not dependent on any of these two red chromosomes. The black chromosomes can make combination with any of the red colored chromosomes. जैसे ये वाला जो क्रोमोसोम है, this chromosome, black chromosome is also, it can also make combination with this chromosome, or this chromosome can also make combination with this chromosome. Okay, so this was the next postulate, that independent pair make combinations independently of another pair. एक इंडिपेंडेंट पेयर आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, और दूसरे क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर भी वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. दिस वाज द थर्ड पोस्टुलेट. एंड जब क्रोमोसोम्स और फैक्टर्स के बीच में पैरेललिज्म ड्रॉ किया गया, जब देखा गया कि जो मेंडल ने अपने फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में फैक्टर्स के बारे में कहा था, उस वक्त उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था कि कोई फैक्टर कोई चीज होती है. लेकिन माइक्रोस्कोप्स आने के बाद जब क्रोमोसोम्स को देखा गया और उन क्रोमोसोम्स का बिहेवियर एग्जैक्टली उनके फैक्टर्स के जैसा देखा गया, तो सटन एंड बोर्गली ने ये प्रपोज किया कि क्रोमोसोम्स एक तरीके से व्हीकल्स हैं, एंड द फैक्टर्स व्हिच वी कॉल नाउ एज जीन्स, they lie on the chromosomes. फैक्टर्स या जीन्स कहाँ पर है? They are located on the chromosomes. जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, ये एक पेयर है, यहाँ हमने एक सिंबल ड्रॉ किया जैसे स्टेम हाइट की जीन इनके ऊपर है. तो देखिए ये क्रोमोसोम का पेयर अगर अलग होता है, सेग्रीगेट होता है, जैसे हमने ये सेग्रीगेट किया, ओके, तो जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे तो उनके साथ साथ जो उनके ऊपर जीन्स हैं जो पेयर्स में दिखाई दे रही थी वो भी सेग्रीगेट हो जाएंगी, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. एक गैमेट में ये क्रोमोसोम चला गया, दूसरे गैमेट में दूसरा क्रोमोसोम चला गया. या अगर फैक्टर की सेंस में बात करें तो एक गैमेट में कैपिटल टी चला गया है और दूसरे गैमेट में स्मॉल टी चला गया है. ऐसे ही इस फैक्टर की बात करें, ये फैक्टर में से जो रेड है, जैसे ये वाला, इसके ऊपर हमने यहाँ पर आर लिखा और स्मॉल आर लिखा, एंड पॉसिबल, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बना है? टी एंड आर. ये कॉम्बिनेशन टी आर का बना है. ये कॉम्बिनेशन कैसा बना है? स्मॉल टी स्मॉल आर का. लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि एक सेल में ये सपोज हम ये क्रोमोसोम रखते हैं और इन दोनों में से, क्योंकि कोई भी जा सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम चला जाए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अगर ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम अगर एक साथ जाते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल आर. और ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम अगर एक साथ जाते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? स्मॉल टी एंड कैपिटल आर. ओके, तो ये जो पेयर है ये इंडिपेंडेंटली दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है. सो दिस वाज द टू पर्सपेक्टिव्स. वन पर्सपेक्टिव वाज फ्रॉम द मेंडल्स वर्क एंड अदर पर्सपेक्टिव वाज फ्रॉम द सटन एंड बोर्गली's वर्क. दोनों के जो भी उन्होंने अपनी स्टडीज की, उन दोनों स्टडीज को पैरेललिज्म के बीच में जब ड्रॉ किया गया तो देखा, तो ये मान लिया गया कि एक्चुअली क्रोमोसोम्स जो सेल्स में हैं, सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे हैव जीन्स ओवर देम. दे एक्ट एज व्हीकल फॉर द जीन्स और द फैक्टर. जहां जहां क्रोमोसोम्स जाते हैं वहीं उनके साथ साथ जीन्स जाएंगे, क्योंकि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द chromosomes. Okay, so I hope this behavior of chromosomes and with the postulates given by Sutton and Bowery are clear to you.